Hi everyone, my name is Premada and welcome to World Student Scope. So yes, in this lecture we will be continuing with the chapter acid, bases and salts. As we know कि last हमने lecture में we covered that acids and bases how do they behave when we mix them with the water. And from this session, from this lecture, we are going to continue talking about the strengths of acids and bases कि strengths कैसे होते हैं, मतलब how do you determine कि strength of acid क्या है, strength of base क्या है. How will you determine if some acid is strong or if some base is strong, right? So let us now begin with our lecture. Right. So yes, strength of acids or base solution, right? So let us now begin. All right. So strength of acid or base can be estimated using indicator, right? So आपको याद होगा that हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही we studied about various types of indicators, right? हमने natural indicators भी देखे थे and हमने ये भी समझा था that how indicators are being used. कि indicators हम use करते हैं to determine if the solution is acidic or the solution is the basic, right? Now तो हमने उसके लिए क्या टर्म यूज किया था? We use the term universal indicator for that, right? So yes, now let us see what universal indicators are. So it is a mixture of several indicators. So universal indicators किसी एक चीज का mixture नहीं होता, बहुत सारे solutions we can say that it is mixed in making one universal indicators. And know this, universal indicators किसके लिए use हो रहे हैं? To determine the strength of acids and bases. For these we are using universal indicators, right? So it shows different colors at different concentration of H positive ions in the solution. Now यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि हमने ये तो समझ लिया that universal indicators में there are mixtures of various colors, right? Various solutions we can say. अब क्योंकि बेटा various several हमारे पास indicators हैं, उसका mixture है, तो obviously जो color होगा, color concentration that will also differ. Okay, so अब क्या आएगा, हमें difference कैसे पता लगेगा? It shows different colors at different concentrations of H positive ions. कि उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में whether it is an acid, whether it is an base, तो उसके सोल्यूशन में बेटा H positive ions कितने प्रेजेंट हैं? How many H positive ions are present? उसके केस में उसके बेसिस पे I would rather say universal indicators will show the colors on the basis of H positive ions. So you will understand how. एक बार हम देख लेते हैं how. So this is our pH scale. So this is how it looks, the universal indicators that we were discussing कि pH scale हमारा universal indicators है because it shows different colors when there is a different solution. So this is how it looks and you can easily see that how many colors a pH scale has, right? So let us first try understanding. एक तो आपको colors differentiate हो रहे हैं सभी को, right? One can see the red color, green color, neon color, orangish color, blue, violet. All these colors are here in the pH scale. Okay, so now let us first understand the neutral solution. अब neutral solution ऐसा solution होता है बेटा that you can easily consume. That is how we understand if a solution is neutral or not, right? So let's suppose water. अब पानी हम पी सकते हैं, various juices we can drink, but हम अभी पानी पे रहेंगे कि हम पानी पी सकते हैं and we can say that water is neutral. तो अगर आपके पास न्यूट्रल सोल्यूशन है आपको तो समवॉट यू गेट अ ग्रीन कलर, राइट? अगर आप लिटमस पेपर से यूनिवर्सल इंडिकेटर से आप मेजर करते हो उस सोल्यूशन को, सो यू विल गेट द कलर अराउंड द ग्रीनिश कलर इफ द सोल्यूशन इज न्यूट्रल. क्लियर? बट जैसे जैसे सोल्यूशन एसिडिक होता जाएगा, जैसे जैसे सोल्यूशन एसिडिक होता जाएगा, स्लाइटली एसिडिक, तो जो ग्रीन कलर है वो आपका इट विल कीप ऑन चेंजिंग इनटू डिफरेंट कलर. देखो ग्रीन से थोड़ा नियॉनिश हुआ, देन इट बिकेम अ लिटिल ऑरेंजिश, देन पिंकिश, देन टोटल रेड. ऑलराइट, तो यहाँ पे इट इज वेरी एसिडिक. अगर आपके लिटमस पेपर में इफ यू कैन सी द रेड कलर कमिंग ऑन अ लिटमस पेपर ऑफ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, then you will easily or instantly know that that particular solution is very acidic. We can say that it is a strong acid. Clear? हम वो strong acid बताते हैं. Whereas अगर आप न्यूट्रल से थोड़ा ही नीचे आपको हल्के ग्रीनिश कलर नजर आ रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में, सो वी कैन से दैट दे आर स्लाइटली एसिडिक. जैसे हम बात करते हैं वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स की,
तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ अप्लाई होता है, राइट। वेरी एसिडिक के नीचे इफ आई डू राइट स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे मैं अगर लिख देती हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो देन ऑल्सो इट इज राइट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स दैट ओनली। एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वीक एसिड। क्लियर? तो वीक एसिड्स के लिए आपको ये कलर नजर आएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए आपको रेड कलर या फिर अ लिटिल बिट ऑफ पिंकिश कलर यू कैन इजीली सी। नाउ अगर हम बात करें बेटा थोड़े बेसिक सॉल्यूशंस की, अगर हम बेसिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो वहां पे कलर कैसे चेंज होता है? न्यूट्रल कलर पे आ जाओ बेटा। न्यूट्रल कलर आपको दिखता है अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीनिश, राइट। आपको इस तरीके का ग्रीन कलर दिखेगा न्यूट्रल में, जिसका हमने एग्जांपल लिया था क्या? टैप वाटर विच वी कैन ड्रिंक, राइट। एंड वंस यू स्टार्ट मूविंग ऑन टू द बेसिक सोल्यूशन, क्लियर, तो आपका स्लाइटली एल्कालाइन, हल्का देखो डार्क ग्रीन होने लग गया कलर, मीन्स इट इज गोइंग टूवर्ड्स द ब्लूइश कलर। जितने भी रेंज ऑफ ब्लू कलर्स हैं वहां पे ये जाना स्टार्ट कर दिया है। तो स्लाइटली एल्कालाइन का मतलब क्या है? ये है वीक बेसिस। दीज आर दी वीक बेसिस। यहां पे आपको वो कलर नजर आएगा वीक बेसिस के केस में। Clear? All these colors that you can see in the litmus paper while going towards the alkaline solution. And फिर उसके बाद जैसे जैसे आपके पास आते जाएंगे strong basis के solutions, so the color will keep on changing into violet, blue, बिल्कुल dark blue colors में चले जाएंगे, right? So very alkaline में बेटा हमने देख लिया ये है क्या है? strong bases हैं. These are the strong bases. Clear? ये सब strong bases हैं. तो ये बात समझ में आ गई सभी को? तो एक तो ये रिप्रेजेंट होगी पीएच स्केल के, एंड दैट इज हाउ यू डिटरमाइन द कलर, राइट। अब आगे देखते हैं बेटा। नाउ लेट अस सी। सो यस, अब पीएच स्केल समझ लेते हैं बेटा। पीएच स्केल का आपने डायग्राम देख लिया है, पिक्चर हमें समझ में आ गई है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कैसा दिखता है, हाउ मेनी कलर्स इट हैज, राइट। ऑल दीज थिंग्स वी हैव सीन एंड अंडरस्टूड, राइट। अब हम देख लेते हैं बेटा पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या चीज होती है? A scale for measuring H positive ion concentration in the solution. So we can say that this will be our definition of pH scale. ये हम बोल सकते हैं ये बेटा हमारी definition है, ठीक है। तो इस वजह से आपने ये definition बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है कि एक ऐसा स्केल जो मेजर करता है H positive ion in a solution. We are not talking about here OH positive ion, बट आप देख रहे हो डेफिनेशन में वी आर एब्सोल्युटली गिविंग आवर अटेंशन ऑन द अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन। तो पीएच स्केल बेसिकली हम उसी लिए यूज करते हैं। तो पीएच में अगर बात करें बेटा, 2 लेटर्स होते हैं P एंड H। तो उसमें जो P वर्ड होता है, P इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस। पोटेंस, इट मीन्स, इट इज अ जर्मन वर्ड मीनिंग पावर। जैसे हम इंग्लिश में हम यूज करते हैं ना वर्ड पोटेंशियल, राइट। व्हाट डू वी यूज? पोटेंशियल हम यूज करते हैं इंग्लिश में। तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? कितना अमाउंट वो कैरी कर सकता है पर्टिकुलर सब्सटेंस, राइट। सो यहां पे हम किसके पावर की बात कर रहे हैं बेटा, वो भी देख लेते हैं। तो यहां पे जो दूसरा लेटर है H इन पीएच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। इट स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। तो इसका मतलब हम किसके पावर की बात कर रहे हैं? We are talking about power of hydrogen. What are we talking about here? We are talking about power of hydrogen. Yes, so that is why we are only looking at the concentration of H positive ion in a solution, right? और इसीलिए कि कितना पावर है, कितनी capability है to produce H positive ions in a solution will determine if that particular acid is a weak acid or very acidic, strong acidic. एंड अगर बेसिस में जाएंगे तो कितना अमाउंट उसका रिड्यूस होता चला जाता है कि H पॉजिटिव खत्म होते चले जा रहे हैं, बिल्कुल है ही नहीं नंबर। द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस आर नॉट देयर ओनली। सो दैट विल डिटरमाइन कि इफ द सॉल्यूशन इज हाईली बेसिक और इट इज अ वीक बेस। क्लियर? So this is about the power of hydrogen, or we can say that potential of hydrogen. Clear? Potential of hydrogen is what is about the pH scale. Clear? अब देखो जैसे pH scale है, यहाँ पे हमने जो हम डेली यूज करते हैं मटीरियल्स, इन दिस इमेज दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, कि हम जो डेली बेसिस पे हमारे यूसेज होते हैं बेटा, ठीक है, वट एवर वी ईट, और जो हमारा बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी वी नो दैट वेरियस काइंड्स ऑफ एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, एंड यू आर वेरी वेल अवेयर दैट आवर स्टमक हैज some amount of HCl, hydrochloric acid. Clear?
तो उन सब का बेटा देखो पीएच हमने क्या किया हुआ है, पीएच नंबर्स लिखे हुए हैं कुछ, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है पीएच स्केल, पीएच स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। देखो विच इज वेरी रेड, एक्सट्रीमली रेड, दैट विल डिटरमाइन इफ द सोल्यूशन इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग एसिड, हाईली एसिडिक, क्लियर। से जाते जाते 14 तक, तो ये नंबर आपको याद रखना है बेटा, 0 to 14 तक आपका क्या होता है, पीएच स्केल होता है। 0 to 14 नंबर होता है पीएच स्केल का, एंड उसमें जो 7 नंबर होता है बेटा, 7 नंबर इज द न्यूट्रल। इसमें 7 नंबर क्या आ जाता है, न्यूट्रल के लिए हम लिख देते हैं 7 नंबर, क्लियर। तो अगर आपको पूछा जाए कि पीएच वैल्यू क्या है न्यूट्रल सोल्यूशन की, तो आप कहोगे 7। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि हाईली एसिडिक सोल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या है, तो यू सिंपली से 0 या फिर 1। दैट डिपेंड्स कि आपके पास वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। या उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि हाईली बेसिक आप किसके लिए यूज करोगे, तो यू सिंपली से 14, क्लियर। तो इस हिसाब से हम देखते हैं। हम जैसे यहाँ पे देखो कॉफी एंड मिल्क स्लाइटली एसिडिक होते हैं, स्लाइटली एसिडिक, इट मीन्स दे आर वीक एसिड। तो कॉफी एंड मिल्क हम ड्रिंक कर सकते हैं, क्लियर। वीक एसिड है, दैट इज वाई वी आर एबल टू कंज्यूम। वेयर एज वाटर इज न्यूट्रल, तो वाटर आप बड़े आराम से पी सकते हो। अब आप नीचे नीचे आते जाओ, विनेगर थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, लेमन थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, बट बेटा दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, देयर इज अ डिफरेंस। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो अभी तक तो अ पर्सन माइट हैव डाइड बिकॉज ऑफ द एसिडिक, क्योंकि वो परफोरेट कर देता, हमारी जो डाइजेस्टिव वॉल्स उसको परफोरेट कर देता, उसमें होल्स कर देता, because acid is that strong if you're talking about a strong acid. But since all these derivatives, जैसे आप lemon ले लो, vinegar ले लो, all these have weak acids, so you are able to easily consume them, clear. Whereas अगर आप HCl की बात करो बेटा, HCl is a quite strong acid which is present in our stomach, but वो जो हमारी stomach की lining है, inner lining है, उसकी वजह से acid हमारे stomach को इतना damage नहीं करता या damage नहीं करता. So that is why you do not feel any damage because of the HCl present in our body. Clear? अगर आप बात करो बेटा water and blood is also slightly basic. Blood आप देख लो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है, blood थोड़ा सा basic होता है, right? तो उसके बाद आ जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम केक्स में यूज करते हैं, इट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सो दैट इज वाई वी आर एबल टू ईट उसको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेटा यूज कर लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम जनरली यूज करते हैं जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, व्हेन यू ईट अ लॉट, सो द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेते हैं, क्लियर। उसके अलावा सोप बेसिक है बेटा, ब्लीच बेसिक है, एंड ड्रेन क्लीनर्स जो हैं दे आर बेसिक, बट उनका जो नेचर है दे आर वेरी बेसिक, दे आर हाईली बेसिक, क्लियर। सो दैट इज हाउ ऑल दिस थिंग्स वी डिटरमाइन, क्लियर। अब देखो बेटा, जो हम वैल्यू की बात कर रहे थे, विच वी वर टॉकिंग अर्लियर, द वैल्यूज, सो यहाँ पे भी दे आर मेंशनिंग दैट इफ द वैल्यू ऑफ पीएच इज इक्वल टू 7, अगर आपके किसी भी सोल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 आता है, तो वो सोल्यूशन हो जाता है न्यूट्रल सोल्यूशन, क्लियर। 7 is for neutral solution, clear. Now if the value of pH is less than 7 से कम की तरफ अगर जाने लग जाता है, towards 1 or towards 0 I would rather say, so it will be considered as the acidic solution. 7 से नीचे वाले क्या आ जाते हैं, acidic solution आ जाते हैं। Now if the value of pH is more than 7, अगर more than 7 है तो क्या आ जाता है, बेसिक सोल्यूशन, देन द सोल्यूशन विल बी बेसिक। 7 से ऊपर टूवर्ड्स 14 विल बी योर बेसिक सोल्यूशन, क्लियर। अब एक बहुत ही अच्छी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो। तो ये कौन सी पिक्चर है बेटा, इसमें क्या दिखाया हुआ है आपको, वेरिएशन ऑफ पीएच विद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, क्लियर, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन सोल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इन सोल्यूशन, वो आपको दिखाएगा वेरिएबल पीएच, वेरिएशन इन पीएच, क्लियर। तो जैसे यहां पे आ गया बेटा 7 आ गया आपका न्यूट्रल, ठीक है, 7 न्यूट्रल आ गया, उसके नीचे बेटा देखो यहां पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे जो H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन है वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। तो 0 में देखो इट इज हाईली देयर, इट इज हाईली प्रेजेंट, तो it will make a very strong acid at the beginning of the pH, clear.
तो यहाँ पे भी लिखा हुआ बेटा एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग। आई होप इट इज क्लियर कि यहाँ पे हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस विच आर इंक्रीजिंग इन अ सोल्यूशन। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन आयन किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है while moving towards or while decreasing, I would rather say, from 7 to 0. Whereas अगर हम एसिडिक साइड की बेसिक साइड की बात करते हैं विच इज मोर देन 7, तो मोर देन 7 में आप देख सकते हो बेटा यहां पे डिक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे H पॉजिटिव आयन डिक्रीज करता हुआ जा रहा है। सी यहां पे H पॉजिटिव आयन से ही आप रिलेट करोगे। क्यों? क्योंकि यहां पे फिर हाइड्रोक्साइड आयन जो है आपका OH नेगेटिव आयन इट इज बीइंग इंक्रीज्ड, तो यहां पे बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयंस। क्योंकि नाउ H पॉजिटिव आयंस नहीं फॉर्म हो रहे हैं, अब फॉर्म हो रहे हैं OH नेगेटिव आयंस, तो यहां पे ऑब्वियसली H पॉजिटिव इज डिक्रीजिंग एंड वही आपको दिखाया भी हुआ है। क्लियर? यहां पे मैं लिख देती हूं H पॉजिटिव डिक्रीजेस, हाइड्रोजन आयंस डिक्रीजेस एंड OH नेगेटिव जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे बेसिक नेचर जो आपका है वो इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो ये वैल्यूज आपको सभी ने याद रखनी है कि 7 पे आएगा तो न्यूट्रल है, राइट? एंड अगर वैल्यू इज लेस देन 7 तो वो एसिडिक सोल्यूशन है, अगर pH वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा। एंड इस सारी कहानी में हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम किससे रिलेट कर रहे हैं pH को? वी आर ओनली एंड ओनली रिलेटिंग इट विद द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये चीज आपने नहीं भूलनी है, दैट विल कवर इन योर डेफिनेशन ऑल्सो। यहाँ पे आप पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हो। समझ में आ गया? तो दिस वॉज अबाउट द pH पेपर। क्लियर? अब एक एक्टिविटी है आपके बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड, एक्टिविटी समझ लेते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड एक्टिविटी 2.11। क्लियर? तो प्रोसीजर देख लेते हैं बेटा। व्हाट आर प्रोसीजर सेज? सो इट सेज टेस्ट द pH values of solutions given in table 2.2. So in your book a table is given which is table 2.2 जहां पे आपको बहुत सारे solutions given हैं, various solutions are given in that table। तो आपने बेसिकली क्या करना है, उन सभी का pH वैल्यू देखनी है, pH वैल्यू टेस्ट करनी है। क्लियर? एंड आपने उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। क्लियर? दैट इज द रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर यू टेस्ट दोज solution with the pH paper. Now the question is, what is the nature of each substance on the basis of your observation? कि आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्या क्या सोल्यूशन में चेंजेस आए हैं, कलर में क्या चेंजेस आए हैं, एंड व्हाट आर द चेंजेस इन द वैल्यूज। सो हियर इज द टेबल एंड आई हैव रिटन दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल दी सॉल्यूशंस। क्लियर? तो ऑब्जर्वेशन में आपके पास टेबल 2.2 है जिसमें you can see that we have 4 columns. Clear? First column is for the solution, the type of solution which has been given. Second is the color of pH paper, कि जब आप pH paper आप लगाते हो तो उसमें कलर क्या आता है। नेक्स्ट आता है approximate pH value, कि pH वैल्यू क्या है, pH वैल्यू क्या आती है, एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस, कि अगर आपको pH वैल्यू मिल गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो नेचर कैसा है, या तो वो एसिडिक होगा, या तो बेसिक होगा, या तो वो न्यूट्रल होगा। क्लियर? तो सबसे पहला बेटा देखते हैं, सबसे पहला जो सोल्यूशन आया है आपका सलाइवा, दैट इज बिफोर मील। दैट इज बिफोर मील, कि मील खाने से पहले, खाना खाने से पहले क्या था, जब आपने कलर देखा तो ग्रीनिश कलर आया, तो ग्रीनिश कलर के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई 7.4। तो 7.4 होने का मतलब इट इज स्लाइटली बेसिक, हल्की सी बेसिक, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या है, न्यूट्रल। आर न्यूट्रल वैल्यू इज 7 एंड 7 से अगर ये 0.4 भी ऊपर है तो वी कैन इजीली से दैट इट इज स्लाइटली बेसिक। क्लियर? उसके बाद सेकंड आता है आपका सलाइवा, दैट इज आफ्टर मील, खाना खाने के बाद सलाइवा का कॉन्सेंट्रेशन देखो तो इट इज टूवर्ड्स येलो, ये है टूवर्ड्स येलो। अब येलो का जो हमने pH वैल्यू मेजर की तो इट इज 5.8 विच इज लेस देन 7। तो लेस देन 7 का मतलब क्या हो गया, इट इज एसिडिक। फिर थर्ड आ जाता है आपका लेमन जूस। नाउ लेमन जूस का कलर आ गया पिंक, पिंक की वैल्यू आ गई 2.5। अब 2.5 तो इट इज वे लेसर देन दी 7 नंबर जो न्यूट्रल था हमारा, तो वी कैन से इट इज एसिडिक। यस, एसिडिक आ गया। देन आपका आता है कलरलेस एयरेटेड ड्रिंक्स, जो एयरेटेड ड्रिंक्स होती है, आपका सोडा हो गया, समथिंग लाइक दैट, राइट।
तो वो आपका आ गया लाइम ग्रीन, थोड़ा लाइम ग्रीनिश कलर है। पीएच वैल्यू आपकी 6 आ गई, तो वी कैन से इट इज स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि 7 से 1 पॉइंट ही नीचे है, तो वी कैन से इट इज स्लाइटली एसिडिक और वी कैन से इट इज अ वीक एसिड, राइट। उसके बाद कैरेट जूस है, कैरेट जूस का पीएच पेपर में कलर आता है येलो ग्रीन, राइट, एंड द पीएच वैल्यू इज 5.6, so we can say that it is also acidic, right, because it is less than 7. Now comes coffee. कॉफी का कलर आता है येलो, येलो का हमारे पास pH वैल्यू है 5, so we can say it is acidic because it is also less than 7. Are we clear till here? उसके बाद आता है टोमेटो जूस बेटा, उसका कलर आता है बेज कलर, बेज कलर की वैल्यू 4.1 है, so it is also acidic, right? Then comes tap water. अब आता है टैप वाटर जिसका कलर आता है ग्रीन, वैल्यू आती है 7, तो वी कैन से दैट इट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। वो न्यूट्रल होगा क्योंकि इसकी वैल्यू आपके पास 7 आ गई, पीएच वैल्यू भी आपकी ग्रीन आ गई है, राइट। देन कम 1 मोल ऑफ क्या, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन आपका कलर आता है डार्क ब्लू एंड पीएच वैल्यू कम्स 14, NaOH, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो इट इज एन एल्कली बेस, क्लियर। फिर आता है आपका HCl, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका कलर आएगा रेड एंड नंबर 1 विच इज एसिडिक एंड इट इज हाईली एसिडिक, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये टेबल सभी को समझ में आ गया, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है बेटा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आपको दिए हुए थे जिनकी वैल्यू हमने नोट डाउन की है, सो यू कैन ऑल्सो नोट डाउन द वैल्यू ऑफ दिस एंड यू कैन फिल योर टेबल विच इज गिवन इन योर NCERT, or you can draw this table separately in your notebooks, clear, right? So now let us move further with this topic. तो क्या है इसमें, the average pH of different food materials are the following. क्या है different food material का, जैसे saliva pH before the meal was 7.4, after the meal depends on the food taken, ठीक है। if acidic food like eggs, meat, juice etc. is taken, pH goes down. If the alkaline food is taken like vegetables, grain, pH may rise up to 8. तो बेटा the nature of food we are eating, क्योंकि हमने देखा जब सलाइवा हमने जब खाना नहीं खाया था तो it was slightly basic 7.4, क्लियर। लेकिन जब हमने कोई एसिडिक फूड खा लिया, let's suppose eggs खा लिए, मीट खा लिया, जूस खा लिया, तो obviously that acidic nature of these food items, eggs, meat और juice, they will get mixed with the saliva and इस वजह से saliva का pH acidic हो जाएगा। Whereas अगर हम कुछ basic खाना खा लेते हैं, let's suppose we had vegetables, grain, तो pH की वैल्यू फिर rise कर जाएगी, it may rise up to 8, तो 8 क्या हो गया, 8 हो गया basic solution, right? तो यहाँ पे भी देख लो बेटा, इधर भी देखो एरेटेड ड्रिंक का क्या था, हल्का येलोइश कलर है, टोमेटो भी हल्का येलोइश कलर की तरफ है, प्योर वाटर ब्लड जो है वो ग्रीनिश कलर की तरफ है, लेमन जूस कॉफी जो है इसकी पीएच वैल्यू भी समवेयर नियर अराउंड येलो ग्रीनिश की टूवर्ड्स है, एंड गैस्ट्रिक जूस जो है इट इज नियर अबाउट रेडिश, एंड जो आपका HCl है वो पूरा ही टोटल रेड है, यहाँ पे NaOH आपका टोटल ब्लू है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है समवेयर अराउंड ग्रीन एंड ब्लू, है ना, चेंजिंग। सो इस हिसाब से हम पीएच देखते हैं, कुछ ऐसे आपको कलर्स नजर आते हैं जब आप उसको डिटरमाइन करते हो, जब आप उसको पीएच वैल्यू के साथ देखते हो, पीएच पेपर के साथ। इट इज नॉट अ वेरी टफ थिंग टू डू बेटा, यू कैन ब्रिंग द पीएच पेपर फ्रॉम द मार्केट, आपको मार्केट से मिल जाएगा पीएच पेपर, यू कैन ब्रिंग इट एंड आपके पास जो वेरियस सॉल्यूशंस हैं, इफ यू आर ब्रिंगिंग जूस, इफ यू हैव टोमेटो जूस, coconut water, whatever solution you have, so you can easily take the pH paper and measure the color, so you will see कि इसकी pH value क्या है, right? तो एक ये बात होगी बेटा, अब आगे देखते हैं। So next is the strength of acids and bases depends on the number of H positive ions and OH negative ions produced respectively. तो ये तो हमने बात करी ली थी बेटा, जो solution ज्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, राइट, जो सॉल्यूशन ज्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, दैट सॉल्यूशन इज एसिड, एंड अगर ज्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहा है इन अ सॉल्यूशन तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ बेस, राइट। ये बात हमें समझ में आ गई है।
So acids that give rise to more H positive ions are said to be strong acids, and acids that give less H positive ions are said to be weak acids, right? ज़्यादा H positive ions तो strong acid, less H positive ions तो weak acid. Same goes with the base कि अगर ज़्यादा OH negative ions रिलीज कर रहे हैं तो strong bases, अगर less OH negative ions रिलीज कर रहे हैं तो they are weak bases. Clear? अब एक बार है ना इस डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि what exactly we mean, right? So let's suppose HCl is a strong acid. HCl strong acid हमने मान लिया, तो इसमें बेटा देखो Cl नेगेटिव तो रिलीज हो ही रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट। जब हम देखो वाटर में जब जैसे ही जाता है एसिड तो इट कैन आयोनाइज इनटू इट्स ओन आयंस। आयोनाइज होने का मतलब डिसोसिएट कर जाते हैं अपने आयनिक फॉर्म में, तो H बन जाएगा H पॉजिटिव, Cl बन जाएगा Cl नेगेटिव, तो वही चीज हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे Cl नेगेटिव तो आ गया, उसके अलावा H पॉजिटिव आयंस आए हैं। सी इफ यू कैन सी इन द सॉल्यूशन कि H पॉजिटिव आयंस आर आल्सो देयर, तो यहां पे नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन ज्यादा है, तो वी कैन से दैट दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। अब अगर आप एग्जांपल ले लो बेटा CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड, विनेगर सिरका। तो CH3COOH अगर वीक एसिड है तो इसमें देखो बेटा CH3COOH नेगेटिव के बाद एक H पॉजिटिव आपका आयन यहां पे आया है, यहां पे H पॉजिटिव आयन आया ना, एक ही रिलीज हो पाया। इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, सिंस इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस कम रिलीज हुए हैं जबकि यहाँ पे ज्यादा रिलीज हुए हैं, तो ये क्या हो गया बेटा, ये सिंपली इट हैज बिकम द वीक एसिड। समझ में आया? एंड दैट विल डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ द एसिड और अ बेस। समझ में आया? नाउ अब एक बार देख लेते हैं बेटा कि इंपॉर्टेंस जो है पीएच की इन एवरीडे लाइफ वो क्या है। पीएच की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं हमारे हर दिन में। सबसे पहले फर्स्ट थिंग आता है आपका पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स में क्या सेंसिटिविटी होती है पीएच की? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच। फर्स्ट थिंग कि प्लांट्स एंड एनिमल्स सेंसिटिव होते हैं पीएच के। नाउ क्रूशियल लाइफ प्रोसेसेस such as digestion of food, functions of enzymes and hormones happens at a certain pH value. चाहे डाइजेशन हो रही है एनिमल्स में, whether the digestion process is taking place, या फिर functions of enzyme कि जितने और लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उसमें जो एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट होती है, that is also one of a process. उसके अलावा various hormones which are acting on the body of the animals. Now all these are pH sensitive, वो पर्टिकुलर pH पे ही अकर करेंगे। जैसे कोई एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर pH पे ही एक्टिवेट होएगा, सेम एज द हॉर्मोन्स, सेम एज द डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेशन के लिए जो आपके जूसेस हैं वो पर्टिकुलर pH पे ही काम करेंगे। सो दैट वे वी कैन से कि इवन इन केस ऑफ प्लांट्स जो वेरियस प्रोसेसेस हैं लाइफ प्रोसेसेस, तो वी कैन से कि pH सेंसिटिव होते हैं प्लांट्स की पर्टिकुलर pH पे ही प्लांट्स और एनिमल्स के जो लाइफ प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं हम, दैट टेक प्लेस। क्लियर? उसके बाद आ जाओ बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पॉइंट क्या है? पीएच ऑफ अ सॉइल। पीएच ऑफ सॉइल देख लेते हैं आप कि पीएच जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की उसके लिए कितनी पीएच रिक्वायर्ड होती है फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप, राइट? सो द पीएच ऑफ अ सॉइल ऑप्टिमल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स or crops is around 6.5 to 7.0. Clear? 6.5 to 7.0 के बीच में we can say that the growth of plant takes place. Growth of plants or crops it takes place. Clear? तो एक ही बात होगी। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पीएच और कहाँ हमारे एवरीडे लाइफ में यूज होता है। So which comes with our third point, that is pH in the digestive system. Now this point is very important, ठीक है? क्योंकि जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम भी करोगे तो उन प्रोसेसेस में भी आपको समझ में आएगा, you will get the understanding that how it is being used. Clear? Now the process of digestion happens at a specific pH in our stomach which is
1.5 to 4. नाउ जो डाइजेशन टेक प्लेस करती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो हमारा जो पीएच है अगर वो 1.5 to 4 के बीच में है तो ही जाके एक जो डाइजेशन होती है हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में, वो टेक प्लेस करती है. क्लियर? सो द पीएच ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ एंजाइम्स while food is being digested is influenced by HCl in our stomach. Even जो HCl का concentration हमारी बॉडी में, उसकी वजह से भी कई एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं हमारी बॉडी में in our digestive system. So you know how it is interlinked, how it is interconnected कि पर्टिकुलर pH पे डाइजेशन टेक प्लेस करती है एंड HCl के लिए वो उतना पर्टिकुलर pH ये होना चाहिए 1.5 to 4 एंड उसी के बीच में बेटा जो वेरियस एंजाइम है उनके बीच में इंटरैक्शन होती है. क्लियर? सो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि जो पीएच है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस यू आर गोइंग टू स्टडी इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पीएच इन टूथ डीके. टूथ डीके, जब दांत सड़ने लग जाते हैं तो उसमें कैसे पीएच रोल प्ले करता है वो देखते हैं. सो टूथ डीके हैपेंस when the teeth are exposed to an acidic environment of pH 5.5 and below. जब कई देर तक, कई लंबे टाइम तक जब जो टूथ है वो एक्सपोज रहता है एसिडिक एनवायरनमेंट के, या तो आपने ऐसा कुछ खा लिया हो, बाद में टीथ को जो है वो ब्रश नहीं किया एंड यू आर continuously giving your teeth an acidic environment by eating certain substances, right? तो pH उस टाइम पे टीथ का क्या रह जाता है? इट इज आइदर 5.5 और बिलो 5.5 एंड एज वी नो pH 5.5 इज एसिडिक pH. ये एसिडिक pH होता है 5.5 एंड अगर बहुत टाइम तक टूथ इस pH के एक्सपोजर में रहता है सो ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट इन द टूथ डीके. फिर दांत सड़ने लग जाते हैं. तो pH वहां पे भी आप देखो, वहां पे भी ये इस चीज को रिजल्ट करता है. उसके अलावा देख लेते हैं बेटा pH of self defense by animals and plants. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, नॉट इन अ करने के सेंस में नॉट ट्रिकी बट टू अंडरस्टैंड, टू रिलेट, राइट? सो एसिडिक सब्सटेंसेस आर यूज्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स एज अ सेल्फ डिफेंस. अब कई एनिमल्स ऐसे होते हैं, कई इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उनके बॉडी में सम एसिडिक सब्सटेंसेस आर देयर जो वो सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करते हैं. For example, bees and plants like nettle secrete a highly acidic substance for self-defense. अब जैसे bees हैं, bees मधुमक्खी है, मधुमक्खी क्या करती है? वो sting करती है जब हमारी बॉडी पे, तो हमारी बॉडी में जलन फील होती है ना, it pains a lot. It is because of the acidic substances which are released by the bees. Bees जो रिलीज करते हैं acidic substances, उन्हीं की वजह से बेटा जो हमें पेन फील होता है, the irritation which we feel, it is because of that. Same goes with the plants like nettle. Now nettle are the type of a plants that also secrete some acidic substances which they use in their self defense mechanism, right? So these secreted acidic substances have a specific pH and in जो क्योंकि बेटा क्योंकि acidic substances हैं तो obviously they will have a specific pH and उसी की वजह से हमारी बॉडी में वो रिएक्शंस होते हैं, या हमारी बॉडी में भी नहीं, एनी अदर एनिमल और प्लांट्स विच कम्स नियर टू दोज प्लांट्स और द बीज, दे एक्सपीरियंस द सेम थिंग. नाउ आपकी जो टॉपिक में अब आपके बुक में जो और सिलेबस में आपके दिया हुआ है सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स. तो कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए एंड वी कैन से दैट दे आर कंसिडर्ड एज द वीक एसिड्स. सो उनके नाम आपको पता होने चाहिए, राइट? सो नेचुरल सोर्स क्या है? विनेगर. विनेगर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है. नेक्स्ट कम्स ऑरेंज. ऑरेंज इज ऑल्सो अ नेचुरल सोर्स. ऑरेंज हम खाते हैं, उसमें होता है सिट्रिक एसिड, दैट इज अ वीक एसिड, राइट? उसके बाद होता है टैमरिंड, इमली, उसमें होता है टार्टारिक एसिड, दैट इज ऑल्सो अ वीक एसिड. देन कम्स टोमेटो. टोमेटो हम सभी खाते हैं ऑन अ डेली बेसिस, राइट? सो उसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड. इन एसिड्स के नाम आई एम राइटिंग डाउन, इंपॉर्टेंट बेटा, नाम याद होने चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि किस नेचुरल सोर्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दैट. क्लियर? उसके अलावा और भी हमारे पास वी हैव सावर मिल्क, दैट इज कर्ड, नेचुरल सोर्स. उसमें जो एसिड टाइप ऑफ एसिड प्रेजेंट होता है वो लैक्टिक एसिड है. उसके अलावा वी हैव लेमन, नींबू हम खाते हैं, राइट?
उसमें कौन सा होता है, इट ऑल्सो हैज़ अ सिट्रिक एसिड. देन एंट स्टिंग, एंट जो हमें जब काटती है तो हमें थोड़ा सा स्टिंग फील होता है ना, इरिटेशन फील होती है बॉडी में. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिथेनोइक एसिड, राइट. उसके अलावा नेटल स्टिंग जो प्लांट के बारे में हमने बोला था, इट ऑल्सो हैज़ अ मिथेनोइक एसिड. ठीक है, दे हैव अ वेरी इरिटेबल रिएक्शन ऑन द बॉडी of the organisms whichever touches it, right. So these are some naturally occurring acids जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. Name you must remember all of these names, right. So yes, with this we finish our lecture and इस lecture में हमने basically बात की है about the pH. pH के बारे में बात की है, pH in our everyday life, what exactly is the meaning of pH and how do you determine the pH of a solution. एसिड्स एंड बेसिस के केस में आप पीएच सोल्यूशन आप कैसे डिटरमाइन करते हो, दैट वी हैव कंप्लीटेड इन दिस टॉपिक, राइट. एंड इसके आगे जो आपके अब जो टॉपिक बच गए हैं आपके फैमिली ऑफ सॉल्ट्स हैं एंड द यूजेस ऑफ कॉमन जो डेरिवेटिव्स हैं, वॉशिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन द लेटर लेक्चर्स, राइट. टिल देन कीप स्टडिंग, keep understanding whatever we have done in the previous lecture, in this lecture, keep relating it, and you will enjoy learning all these topics that we have studied in this particular time period of learning this acid, bases and salts, right. Till then, I'll see you in the next lecture. Thank you so much.